Good morning, students, and welcome. Today, again, we'll be continuing with this lesson number 1.4, The King's Choice. I hope you remember the story. It was the story of a lion who was called as a king and wanted a court for himself. So he appointed Fox as an advisor, Leopard as a bodyguard, and Vulture as a messenger. Okay, they all went for to catch camel because Vulture had said that he has found a camel and the camel meat is very tasty. So all of them goes to find the camel so that they can have the camel meat, a good feast. After traveling for a long time, anyway, the fox was able to manage and get the camel and bring the camel to near the king, means that is the lion. So they all returned back to the forest with the help of the camel because camel carried all these animals, the leopard, the fox on their back, even the lion. उनको अपने पीठ में लाद के वो वापस फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं. उनका प्लानिंग रहता है. द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द vulture were planning to have the camel meat. So they were planning to have, so they can tell the king that we will have that meat, camel meat. तो उनका ये प्लानिंग चल रहा था किसी तरह वो राजा को मनाए और कैमल मीट खाए. ओके, now let's see. And see here, the lion knew it very well that the fox, the leopard and the vulture are planning to eat the camel. So what did he do? He just called the camel and told, "Friend camel," he said, "I have to thank you for saving my life. You are welcome to live at my court as long as you like. I promise you my protection." What he says to friend camel, "You have saved my life." Means he was unable to walk because his paws were burned. इतनी गर्मी तपने की वजह से, ज़मीन में तपने, रेगिस्तान में चलने की आदत नहीं होती है इनको, फॉरेस्ट के एनिमल्स को. और कैमल कहाँ पे होता है? रेगिस्तान में होता है. तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, तो वहाँ का उसके ऊपर चलना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है. तो द लायंस पॉज वे बर्न, वो जल गए थे, वो इसकी वजह से चल नहीं पा रहे थे, पैरों में चाले वगैरह पड़े थे. तो कैमल ने अपने पीठ में उसे लाद के हुए फॉरेस्ट तक पहुँचाया था. तो इसलिए वो बोलते, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी जान बचाई थी. द लायंस कोर्टियर्स वेर शॉक्ड at they not risk their life so that they could try camel meat. Now when they heard what the lion say, lion ने क्या बोला? कैमल, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर मुश्किलों से बचाऊंगा, हर प्रॉब्लम से बचाऊंगा, कोई तुम्हारे तरफ देखेगा भी नहीं. ओके, now hearing this they were shocked because they wanted to eat the camel meat and बहुत सारे कोशिश करने के बाद इतना they were managed to get this camel and they were very much displeased, या वो लोग बिल्कुल प्लीज नहीं थे लायन के बर्ताव से. Now they are planning for something. The courtiers were not pleased with this decision, yet they could do nothing. Now the lion's paws were so badly burned that he could not go hunting. But that did not keep him from growing very hungry indeed. Now his paws were badly burnt, I told you. So he was unable to walk and he was unable to go for hunting. But he was hungry. So he just ordered fox, leopard and vulture. He shouted at them, "Don't you see that I am ill and hungry? Go and get me some food." He's saying, can't you see that I am unable to walk and hunt for the food? Why don't you go and get the food? I am feeling hungry. The courtiers had to obey the king, so out they went, but they did not go far. They obeyed the king say. What did the king say? But they did not go far. काफ़ी दूर नहीं जाते, बाहर ही थोड़ा बाहर आते हैं. They sat down in a safe place and discussed what they can do. Now they three of them are discussing that how they can make a plan so that they can eat the camel meat. "I know," said the fox after a while. "We shall make the camel has to be eaten." तो बोलते हैं हम लोग. Now the fox is very cunning.
काफ़ी चालाक होता है। ही वॉज प्लानिंग, बोलते हैं वी विल मेक द कैमल टू टेल दैट लेट टू हीट हिमसेल्फ, मतलब ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कैमल खुद से अपने मुंह से बोले कि उसे खाए। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, वो सारा अपना प्लान्स उनके साथ शेयर करता है। दे ऑल एग्री टू सो बैक दे वेंट टू द किंग। फर्स्ट द vulture stepped forward. Your Majesty, he said, going low, we have found no food, but we cannot let your Majesty suffer. I am a poor creature, eat me. Now this is their planning. उन लोग प्लान करते हुए मतलब अपने आप को सबको ये करेंगे। वल्चर बोलेगा मुझे खा, लेफर्ड बोलेगा मुझे खा, फॉक्स विल से द मुझे ईट मी। आफ्टर ऑल सीइंग दिस कैमल हिमसेल्फ विल से दैट ना कि मुझे खा जाओ, और यही अच्छा मौका है कि वो लोग खा जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्न इट वॉज ऑफ वल्चर, तो इट स्टेप फॉरवर्ड, वो सामने आता है, बोलते हैं योर मैजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड, हम आपके लिए इतनी कोशिश किए खाना लाने के लिए, बट वी वर अनएबल टू डू सो, सो प्लीज़ मैजेस्टी यू हीट मी, तो आप मुझे खा लो। आई एम अ पुअर क्रीचर, ईट मी, आपको भूखा हम नहीं देख सकते हैं। The fox pushed the vulture aside. I have more meat on me, he cried. Eat me, your majesty. Now what did the fox do? He just pushed the vulture. Vulture को बाहर पुश करते हुए बोलते कि मेरे शरीर में वल्चर से भी ज़्यादा मीट है, तो you eat me, your majesty. Now the leopard rushed forward. Now it was the turn of the leopard. I am not much good, he cried, but I could make a meal for the king. बोलते मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ, I am not so good, but I will make a good meal. यानी मेरे शरीर में इतने मांस है कि अच्छा खासा उनका पेट भर जाएगा. You will have a good meal. The camel listened to all these efforts. He must do as much he thought. Now the camel was standing over them and he listened all their offers. इनको एक एक करके हुए अपने आप को खाने के लिए वो किंग को बोल रहे थे, ये सब वो देख रहे थे. He must do as much he thought. Your Majesty, he said, I too am willing to give my life for you. Now जैसे उन लोगों ने प्लान किया था कि अपने आप को सबको राजा को बोलेंगे खाने के लिए, अब उसे देखते हुए कैमल भी बोले. इवन द कैमल डिड द सेम थिंग. कैमल ने भी उनको देखा कि ये तो उसके अपने कोचियर्स से वो अपनी लाइफ उसके लिए दे सकते, तो वाई कांट हाई, तो ये ऑफर्ड हिमसेल्फ टू किंग लायन. ओके, योर मैजेस्टी सेड I too am willing to give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours. Who will be more useful than I am. Now what the camel is saying, please don't eat your old friends, क्योंकि वो उसके दोस्त थे पहले से एक साथ रहते आ रहे, तो please don't eat them. Who will be more useful than I am. They are more useful to you than I am. उन लोग आपको बहुत मदद करते आ रहे हैं अभी तक, आपको और मदद करेंगे, लेकिन मैं शायद इतना नहीं कर पाऊँ, तो why you hate me. This was what the fox, the leopard and the vulture were waiting. आप लोगों को पहले बताया था, यही वो इंतज़ार करते, प्लान करके ये सब प्लान करते हुए वहाँ आते हैं, तो दे काफ़ी खुश होते हैं उनको, क्योंकि एज दे प्लान इट वॉज वर्किंग एट दैट वे ओनली. तो जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही हो रहा है. दे प्रिपेयर टू जम्प एट द कैमल, बट द कैमल लायन स्टॉप देम. नाउ दिस ऑल वे आर प्लानिंग टू जम्प ओवर द कैमल, बट वॉट डिड द लायन डू, द लायन स्टॉप देम. लायन ने उन सबको रोक दिया. You are all good and loyal subjects, he said. My heart is touched by your offers. I accept them all. I shall eat you in the order in which you offered yourself. Now the king was very clever. He got it. किंग को समझ में, लायन को समझ में आया, दिस इज ऑल द प्लानिंग डन बाय फॉक्स, लेपर्ड एंड द वल्चर सो दैट दे कैन बी एबल टू ईट द कैमल. अभी उनको समझ में आया. देन व्हाट इज सेइंग, यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट, मतलब आप मेरे वफादार साथी हो, मेरे कोटियर्स हो. आप लोगों की भावना मुझे बहुत पसंद आई. आई एम टच्ड बाय द ऑफर्स, आप लोग ने जो अपने आप को ये ऑफ़र किया मुझे, मैं बहुत उससे प्रभावित हो गया, मेरा दिल आपने जीत लिया. आई एक्सेप्ट देम ऑल,
बोलते मैं आप लोगों का जो ऑफ़र है मैं एक्सेप्ट करता हूँ. आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ. जिस तरह आपने पहले वल्चर आया, फिर फॉक्स आया, एंड देन केम द लेपर्ड. जिस तरह आप लोग ने एक एक करके मेरे सामने अपने आप को ये किया है, सौंपा है, वैसे ही आप लोग एक एक करके आ जाओ. मैं आप लोगों को एक एक करके खा जाऊंगा, तो सो दैट मेरा जो हंग्री टमी है, मेरा जो पेट है वो भर जाएगा. The vulture, the fox and the leopard were shocked to hear this. Okay, now see ये बातें सुन के वो काफ़ी shocked हो गए. They never expected that the lion would say such things. और लायन भी तो ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर. उनको अच्छे से लायन को पता था कि ये लोग सब मिलकर उसको कैमल को मारने की कोशिश करे. वो एक गरीब जानवर था और इसके ऊपर उसे लायन को बहुत बुरा लग रहा था कि लोग सब प्लान करके उसके मारने की कोशिश कर रहे. और दे नेवर, दिस वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड नेवर एक्सपेक्टेड दैट कि राजा उनको खाएगा. जो इतने सालों से उनके साथ रहा है वो आज उनको खाने की बात कभी कर सकते हैं, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था. Away flew the vulture, away ran the fox and the leopard. Now they are afraid. अभी वो सब डर गए बात सुन के. तो वल्चर भाग खड़ा हुआ, even ran the fox also and the leopard. अब तीनों भाग खड़े हो गए. They were never seen in the forest again. उसके बाद वो कभी भी फॉरेस्ट में नहीं नजर आए. The lion laughed to see them go. Now the lion was laughing at them. उनको उसे हंसी आने लगे इनकी करतूतों को देख के. Then he turned to the camel and said, "You have been loyal and good. You shall be my friend as long as we live." बोलता है तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो, यू आर अ गुड फ्रेंड एंड यू हैव बीन लॉयल एंड गुड. तुम बहुत लॉयल हो, वफादार हो और बहुत अच्छे हो. हम लोग हमेशा ज़िंदगी भर दोस्त बने रहेंगे. The camel was happy and grateful. The lion thought to himself, to be king is good, but to be kind is better. Okay, the camel was happy to and grateful. वो उनकी बात सुन के बहुत खुश हो जाता है कैमल. और लायन क्या सोचता है, टू बी किंग इज़ गुड, राजा होना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान या अच्छा ये व्यक्ति होना उससे भी अच्छी बात है. ओके, तो ही केम टू नो दैट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ताकि हर कोई इंसान आपको उनके अपने मन से वो उसे अपनाते हैं विथ एन हैप्पी मूड एंड ऑल. ओके, तो राजा बनने से ज़्यादा क्या है, एक अच्छा इंसान बनना. और उसे भी लगा कि एक राजा बनने से अच्छा है कि मैं वो हमेशा एक अच्छा एनिमल या अच्छा लायन बन के रहूँ. And he did the same. They were friendly. The lion and the camel were friendly till the end of their life. Okay, this is the story. हमेशा वो खुश थे, रहते थे. To be a king is good, but to be kind is better. अच्छा होना, काइंड होना, दूसरे के फीलिंग को समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है. It is quite important. So it is quite necessary to be kind to others. ओके, ना इट्स ऑलमोस्ट सब असाइनमेंट होते आ रहे हैं. हमारे क्वेश्चंस जो भी दिए जा रहे हैं दैट आर ऑल्सो सॉल्व, उसे भी सॉल्व किया जा रहा है. कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, कुछ मैं आपको दे रही हूँ. सो इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, द लेसन इज़ बीन कम्प्लीटेड. नाउ से द कॉमन नाउन्स एंड द कॉमन नाउन्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है. सी ओवर हियर, लेट्स सी. some things animals etc, that is some nouns can be counted. कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हम काउंट कर सकते, they are called as countable nouns. some common nouns stands for something but they cannot be counted. कुछ common nouns जो नाम रहते हैं वो किसी चीज़ को ये किया जाता है बट उसको काउंट नहीं कर सकते, they are called as uncountable nouns. Okay, countable nouns have two forms. A noun that shows one person or a thing etc is called as singular. काउंटेबल नाउन्स देखिए आर ऑफ टू फॉर्म, दो फॉर्म में होते हैं. ए नाउन दैट शोज वन पर्सन, अगर एक सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग के पर बताता है तो इट इज कॉल्ड एज सिंगुलर. आप लोगों को पता होगा बॉय, गर्ल, चेयर, इस एक ही है तो दैट इज सिंगल, तो दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर फॉर्म.
और ज़्यादा एक से ज़्यादा लड़का है, एक से ज़्यादा लड़के, एक more than one boy, one girl, we say boys, girls, chairs, tables. Okay, we are adding s to that to show that they are more than one. That means they are in a plural form. The noun that has more than one person or a thing, it is said to be a plural. For example, boys, girls, dogs, trees. See, s is added to that. That shows that is more than one. Then it is said to be a plural form. Now the common nouns, it is divided into two parts, the countable nouns and the uncountable nouns. Countable nouns, again it is divided into two parts, that is singular and plural. Okay, काउंटेबल नाउन को फिर डिवाइड किया जा सकता है दो हिस्सों में, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. जिसमें एस लगा जाता है उसको हम प्लूरल फॉर्म करते. इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. अगर वाई से एंड होता है जो लेटर वर्ड, उसके इधर वाई के बदले आई ई एस लगता है. ए से समय वॉच एच भी है तो एच अगर एच से हैंड होता है तो वहाँ पे ई एस लगता है. तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें भी होते हैं. ओके, यू कैन सी हियर word, country, game, watch, etc. That is a plural singular form. Words, countries, games, watches, these are the plural form. तो कॉमन नाउन का एक काउंटेबल नाउन है जो दो हिस्सों में बांटा गया है, सिंगुलर एंड प्लूरल. उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स, दैट इज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम गिन नहीं सकते. जैसे हमारे सर पे बाल है, हम उसको गिन नहीं सकते. दे आर लार्ज इन नंबर. वाटर हम इसको ऐसे एक दो करके इस तरह काउंट नहीं कर सकते. हम उसमें मिलीलीटर, लीटर्स या किलो इसके हिसाब से मापते हैं. तो दे आर अनकाउंटेबल. गोल्ड भी ग्राम के हिसाब से काउंट किया जाता है. एक दो, जैसे बनाना को हम काउंट करते हैं या बॉयज़ को काउंट करते हैं, गर्ल्स को काउंट करते, वैसे हम उसको नहीं कर सकते. गोल्ड को वो ग्राम के हिसाब से काउंट होता है, वज़न में तराजू में रखा जाता है, तो वो कितने ग्राम्स का है, दैट इज़ काउंटेड इन दैट वे. स्काई है, स्काई विशाल है, इट इज़ अ ह्यूज बिग, इट इज सराउंडेड बाय आवर अर्थ इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द स्काई. तो वी कांट काउंट दैट, उसे हम काउंट नहीं कर सकते. अगेन दे आर कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स. फन, खुशी जो हमें मिलती है, किसी चीज़ से हमें जो खुशी मिलती है उसको हम गिन नहीं सकते, एक दो तीन ऐसा करके, तो खुशी को मापा नहीं जा सकता. तो ये सब चीज़ें जो चीज़ों को हम माप नहीं सकते, गिना नहीं जा सकते, उससे हम अनकाउंटेबल नाउन में पाते हैं. ओके, दिस इज़ द ग्रामर पार्ट ऑफ दैट. तो आपको 5 काउंटेबल नाउन्स लिखना है फ्रॉम द पैसेज. ओके, फ्रॉम द पैसेज एंड राइट द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म. यहाँ से आपको काउंटेबल ढूंढ के उसके 5 फॉर्म लिखने हैं. ऊपर से सिंगुलर है कि प्लूरल, राइट दैट ऑल्सो. ओके, उसका सिंगुलर फॉर्म, जैसे अगर इफ इट इज फाइंडिंग लायन, व्हाट विल राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ लायन. ओके, अगर कुछ और चीज़ आपको मिलता है तो उसमें से आपको ढूंढना. यू कैन फाइंड फ्रॉम द पैसेज एज वेल एज यू कैन फाइंड बाय योर सेल्फ. कुछ और वर्ड्स आप ऐड कर सकते हो. List the unit that we use to measure the following. See, some of the things are measured in the unit. जैसे मैंने आपको बताया कि पानी को हम 1 2 3 इस तरह काउंट नहीं कर सकते, उनको मापा जाता है मिलीलीटर्स, लीटर्स के माप से. तो यू हैव टू मेंशन ओवर देयर. वाटर को आप लोग कैसे लीटर के हिसाब से मापते हो. मिल्क को भी लीटर, मिलीलीटर के हिसाब से. डिस्टेंस को किलोमीटर और वेट को ग्राम एंड किलोग्राम के हिसाब से मापते. तो यू हैव टू मेंशन दैट वाटर को किस तरह मापा जाता है, मिल्क हाउ इट इज़ मेजर्ड, हाउ द डिस्टेंस इज मेजर्ड एंड द वेट इज मेजर्ड. ओके, so you have to mention how they are measured. I have explained you everything. I hope you understood it. Thank you.